Welcome to SKU Digital Classes. This is Madhav Saran Pathak, Assistant Professor, Department of Law. Today's your class is upon Contract Act, Law of Contract, and this class is for particular BA LLB first semester and LLB first semester. In this class, we will generally introduce to Contract Act and general principles of Contract Act. To read any topic in any kinds of syllabus, it is necessary to know about the background of subject. First unit is about history and nature of contract obligations, agreement and contract definitions, elements and kinds of contract. Third topic is about proposal and acceptance. Fourth topic is about consideration. Fifth topic is capacity to contract. So before starting class, we have to necessity to know about the history and nature of law of contract. As well as we all know, the Indian era, there is classification of eras. First is Hindu mythology or jurisprudence. Second one is Mohammedan eras. So Hindu jurisprudence eras, Dharma Shastra, the code of Manu, and jurisprudence work of sages like Narada, Brahaspati, Yajnavalkya, etc. In different communities, different authorities were followed, and thus there was no uniform system. So in the era of Hindu jurisprudence, there is a basic concept behind the law and law of contract. There were some Smritis like Manu Smriti, like Brahaspati University, Brahaspati. Narada, Brahaspati, Yajnavalkya, there are several concepts arises about the law of contract. In Mohammedan jurisprudence, the Mohammedan jurisprudence is generally recognized to have developed better theory of the law of contract. In Mohammedan law, there is a word contract was used in concept of marriage. In Mohammedan eras, marriage is called as a contract. So there is a contract between bridegroom and bride. The marriage was not a sanskar. In Mohammedan law, marriage is a contract. So first time in Indian history, the contract word is used basically in Mohammedan laws. Then the third period is British period. British period was golden period of codification of laws, as well as we all knows the Indian laws basically developed in British period, like Contract Act 2. Contract Act was enforced in 1st September 1872 in India. So the British period was golden era for Contract Act. As well as British period was golden period of codification of laws. So the codification firstly introduced in the British period. Lord Macaulay was the first Britisher who gave the uniformity in Indian laws in Indian history. In 1930, the codification was started. Under the codification, several laws was introduced in Indian history. First, like Indian Penal Code, Indian Evidence Act, Indian Contract Act, Transfer Property Act. So the most of codification was performed in British period, and the enforcement of contract was in period of British period. So from the lectures we have introduced the history of Contract Act. We read
Hindu mythology, Hindu jurisprudence. We read about Mohammedan jurisprudence. Third one is British period. So we can say the last period, British period. By the last period, the Contract Act is existed in 1872. Now the contract law, we are going to the center of contract law. As well as we know all the topics, before reading any kinds of topic, we have to know the meaning of each subject. Like that, Contract Act, as well as we have discussed in historical background, the Contract Act was enforced in 1872, law of contract, and the term contract is derived from the Latin word contractum. The law of contract is governed by the Contract Act 1872. So regarding any kinds of commercial laws and commercial disputes, and dispute regarding any contract or agreement shall be resolved by the Contract Act 1872. Before, as well as we know the contract and agreement, in simple way we always told contract and agreements are similar, but there is difference between contract and agreement according to Contract Act. There is a quotation, all contracts are agreement, all agreements are not contract. So the prior stage is agreement. Before forming the contract, there is necessity to be a agreement, and all agreements are not contract because some agreement can be divided into two sense. First sense, agreement can be divided in two senses. First is legal agreement, another one is social agreement. Social agreements, like our father says, if you complete that so and so examinations, then I will give you a bike, and child think after completing that exam he has the right to enforce that particular promises. So it is kind of social agreement that cannot be enforced by law. But if any agreement legal agreement, then there is necessity to form a contract. A legal agreement, like a person is going to Flipkart and purchasing something, and he has paid the consideration for that, and after the transaction the particular company like Flipkart is not sending their product, then that agreement or contract can be enforced by law, because there are terms and conditions, so that should be followed by the Flipkart, and these kinds of contracts are particularly legal contract. In Contract Act section 2H there is definition of contract. The definitions told an agreement enforceable by law is contract. This definition can be divided into two content. First one is agreement, second one is enforceable by law. To know briefly about contract, we have to necessity to know about agreement and enforceability of law. Agreement, as well as I had discussed before second last slide, that agreement must be legal, or legal agreements can be enforced. Like agreement is an agreement, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. So we can divide it. Every promise is defined in section 2B. A proposal, when a proposal is accepted, then it becomes promise. So every promise or every set of promise, every set of promises. So agreement consists of only promise or set of promise forming the consideration for each other. Who is each other? Offerer or proposer or acceptor. So these two persons each other. Consideration, to form an agreement there is necessity of consideration. If there is no consideration, agreement cannot be performed.
So every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. So it's a first part of contract agreement. Enforceable by law. The contract was defined in 2H, and to enforce a contract there is necessary to there are essentials of section 10. In section 10 there is what agreements are contract. To perform the enforceability there is necessity to know what kinds of contract can be enforceable. I had told before it that there are two kinds of agreement. First one is legal agreement, another one is social agreement. Social agreement cannot be enforced, but legal agreement requires two conditions: agreement or the agreement must be enforceable by law. And what are the requirements for what enforceable by law? What agreements are contract? So agreement I had defined it. Now the what agreements are contract? Agreement तो must है, लेकिन उसके बाद भी कौन से agreement contract होंगे? All agreements are contract. सभी करार संविदा हैं if they are made by the फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, यदि वह पक्षकारों के फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति से बनाई गई हैं. और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देयर इज सेक्शन 11 विच टोल्ड अबाउट हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर a lawful consideration, lawful object. In these situation, lawful consideration and lawful object, we will have to read section 27 where it was mentioned what considerations are lawful and enforceable by law and are not hereby expressly declared to be void. तो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिनको स्पेशली void डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो इसमें आप कंडीशंस देख सकते हैं. ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी करार संविदाएं हैं यदि वह पक्षकारों की, पहला पक्षकार आपके लिए आवश्यक है, दूसरा आपकी स्वतंत्र सहमति आवश्यक है, तीसरा आपको बताया गया कि आप संविदा करने के योग्य हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11. फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, विधि पूर्ण प्रतिफल के लिए और विधि पूर्ण उद्देश्य. अगर आप कहें कि हम आपको गोली मार देंगे और ए कहता है बी को गोली मार दीजिए, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, देन these kinds of the lawful consideration and lawful object is required for performing a contract. So this, for example, another example is that कोई पीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, कोई एग्जामिनर है, उस एग्जामिनर कहता है कि हम आपको एक पेपर लीक करके देंगे, इसको इतने रुपए में हम आपको ये पेपर बेचेंगे. तो ऐसे अगर वो पेपर दे देता है और कंसिडरेशन वापस रिटर्न नहीं की जाती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक, उसके अलावा सेक्शन 36 और सेक्शन 56 के बारे में स्पेशली बोला गया कि दीज काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट आर वॉइड. तो ऐसे कोई एग्रीमेंट जो है वो वॉइड घोषित ना किए गए हों इस एक्ट के द्वारा, तो ये आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. अब आते हैं कंटेंट पे, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के. तो मैंने आपको जैसे वहाँ पे डिस्कस किया, ये लिखा है यहाँ पे एग्रीमेंट, और पार्टीज़ थी, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए. कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट इन लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, और नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड. और एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा उसको वॉइड घोषित नहीं किया जाना चाहिए. ये फिर मैंने उनको कैटेगराइज किया है, सेक्शंस लिखे हैं. पार्टीज़, पक्षकार. पार्टीज़ कौन होगी? आपके प्रपोजल करने वाला, प्रपोजर, ऑफरर, प्रपोजर को ऑफरर भी बोलते हैं, और आपका एक्सेप्टर. दो पार्टीज़ होनी चाहिए. कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए, सहमति आपकी स्वतंत्र होना चाहिए. इसके रिगार्डिंग आपके सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18. अब 13 में आपको बताया गया कंसेंट क्या है, ठीक है ना, और 14 में आपको फ्री कंसेंट बता दिया. फिर ये आपका CUFM ऐसे आप याद कर सकते हैं. सो C क्या हो गया? कोएर्सन हो गया,
यू क्या हो गया, एंड इन्फ्लुएंस हो गया, 17 क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, 8 हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद मैंने आपको कॉम्पिटेंसी के बारे में वहीं पे आपको डेफिनेशन डिस्कस करते हुए बताया कि सेक्शन 11 क्या कहता है, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट ऑफ द लेक्चर देयर इज टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो सेम कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड इन लास्ट ऑफ लेक्चर, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो सेक्शन 23 कहता है कि ऐसी करारों के बारे में और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि वहाँ पे सिचुएशंस बनाई गई कि अगर फ्रॉड किया है, आपने कोई विधि के बंधों को उल्लंघन किया है या अननेचुरल वर्क किया गया, तो ऐसी कंसिडरेशन या ऐसे ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट बनाए गए हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट की जो लिमिटेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करते। फिर इसके बाद मैंने लिखा है आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मैंने आपको बताया कि जो संविदा थी उस संविदा में ऐसे कोई वो एग्रीमेंट संविधाएं नहीं होंगे जिनको स्पेशली ऐसे एग्रीमेंट्स को इस एक्ट में, इस अधिनियम में डिक्लेयर किया गया है क्या, वॉइड। तो ये आपको 5 कंटेंट हैं, ये आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने में। ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, लिखा है मैंने लीगल इफेक्ट के साथ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर यूनिलेटरल, बाईलेटरल, एक्सक्यूज, और इसके बाद इसके आपके फॉर्मेशन के आधार पर एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये आपकी क्लासिफिकेशन है, इनको ब्रीफ में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं वो आपको जानने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सब्जेक्ट के द्वारा आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ एंड शुड बी फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 एंड 11। इसमें मैंने यही लिखा है एन एग्रीमेंट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज़ मेड बाय द प्री कंसेंट, तो सेक्शन 10 रिक्वायरमेंट्स शुड बी फुलफिल्ड। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबिलिटी की स्थिति में आता है और उसकी कंडीशंस या वो कॉन्ट्रैक्ट फिलअप नहीं किया जा सकता। नेचुरल कुछ ऐसे कारण हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम पे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की स्थिति में थे, लेकिन लास्ट में जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने या नेचुरल कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इसके बाद है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको मैं पहले से आपको बता दूं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि वो एक व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता है, लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस की स्थिति आ गई तो वहाँ पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और वो व्यक्ति वाइडेबल करा सकता है जिसको ऐसी स्थिति में असम्यक स्तर की स्थिति में रखा गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की स्थिति में रखा गया, या किसी को कोएर्सन देकर कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है, या किसी को मिसरिप्रेजेंट करके इंट्रोड्यूस किया गया है, फ्रॉड करके, तो ऐसा व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को नॉन परफॉर्मेंस के लिए और चाहे तो परफॉर्मेंस के लिए फॉलो करता है। लाइक जो आपकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज़ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो जिसको उस कंडीशंस में रखा गया है, वाइड कराने की कोशिश की गई है, वो व्यक्ति उसको परफॉर्म करा सकता है और चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। अब आते हैं एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट क्या है उसमें मैंने आपको बता दिया, इन एग्रीमेंट के अंतर्गत वही डेफिनेशंस हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सो दीज आर द एसेंशियल्स। एग्जाम्पल, a promise to deliver his watch to B and in return B promises to pay a sum of money 2000 to A. There is said to be an agreement between A and B. So promise हो गया कि मैं आपको घड़ी दूंगा, सामने वाले ने कंसिडरेशन में दिया कि मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, तो कंसिडरेशन टू ईच अदर हो गया और ये इट्स सेड टू बी एज एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट बताए गए हैं, एन एग्रीमेंट, काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, ये हो गया था आपका प्रॉमिस।
When a proposal accepted becomes promise. Proposal and acceptance are the essentials of promise. Proposal, किसी को आपने कुछ कहने के लिए बोला तो वो proposal होता है normal language. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. So such act or abstinence is said to be proposal. An offer is an expression of the offerer's willingness to do or abstain from doing one elements. It should be made with a view to obtaining the assent of other offeree to the proposal, act or abstinence. So this is proposal. Communications of proposal is mentioned in section 3. Communication of proposal when completed, सेक्शन 4 बोलता है कि कब कंडीशंस, ये जब नेक्स्ट में आपके आगे लेक्चर जो ब्रीफली जाएंगे उन ब्रीफली लेक्चर्स में उनको एक्सप्लेन किया जाएगा. व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल, नाउ द टॉपिक इज एक्सेप्टेंस. व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Section 2b defines acceptance. So there are two ingredients: proposal, signification of assent of the acceptor. Next आता है communication of acceptance. Section 3. Communication of acceptance when complete is about section 4. Illustrations. Communication when complete. We accept A's proposal by a letter sent by post. The communication of the acceptance is when complete. As against A when the letter is posted. तो एक विरुद्ध कब पूर्ण हो जाएगी? जैसे लेटर आपके बॉक्स में या स्पीड पोस्ट कर दी जाती है. अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड. बी का कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब होगा? जब बी को लेटर प्राप्त होता है. अब आता है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स मनी और एनीथिंग जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के एवज में आपको देनी पड़ रही है. सपोज़ मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक घड़ी थी, एक ही घड़ी, ए ने एक घड़ी बी को 2000 रुपये में देने के लिए बोला और वो ए ने जब वो, तो ये कंसिडरेशन क्या होगी? आपकी घड़ी एक कंसिडरेशन होगी और वो 2000 रुपये कंसिडरेशन के तौर पर. डेफिनेशन देख लेते हैं 2D में जो दी गई. व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेनेड फ्रॉम डूइंग or does or abstains from doing or promises to do, abstain from doing something, such act or abstinence promise is called a consideration for the promise. So there are 3 ingredients mostly I had taken from the section. At the desire of promisor, so promisor की desire इच्छा होनी चाहिए. promisee or any other person, promisee की और other person की. फिर है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ किया है या कुछ करने जा रहा है. डज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, करता है या कर रहा है. प्रोमिसेस टू डू, या तो वचन देता है या वचन को परफॉर्म करने के लिए कहता है. सो सच एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड टू बी कंसिडरेशन. अब मैंने आपको इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था. वहाँ पे बताया था लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. ये भी देख लेते हैं. सेक्शन 23 में इसको बताया गया. कौन सी कंसिडरेशन लॉफुल, इसमें बोला गया था नेगेटिव डेफिनेशन है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस. तो अनलेस क्या है? इट इज़ फॉरबिडन बाई लॉ, या तो विधि द्वारा रोका गया, लॉ द्वारा उसको फॉरबिडन किया गया. इट्स of such a nature that if permitted it would be defeat provisions of law. अगर वह किसी विधि के उपबंधों को ख़त्म कर देगा या उनको हार्म पहुंचाएगा. इट फ्रॉडुलेंट, कपट करने की आशा से कोई आपका कपटपूर्ण कंसिडरेशन है या कपटपूर्ण उद्देश्य है तो भी वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेंगे. इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ, किसी की प्रॉपर्टी को या शरीर को हार्म पहुँचाने के उद्देश्य से अगर किया जा रहा है. The court regards it as immoral or opposed to public policy. कोर्ट के द्वारा उसको अनैतिक और लोकहित के विरुद्ध बताया गया है.
In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. तो जो भी consideration इन conditions में आएंगी वो void रहेंगी. अब आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको बताया था वहाँ पे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये सेम वर्ड थे आपके. तो ये सेक्शन 11 मैंने आपको इसके पहले बताया कि सेक्शन 11 में इस चीज़ को बताया हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 कहता है संविदा करने में कौन सक्षम होगा. तो संविदा करने में वह व्यक्ति एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, योग्य है. कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी. तो जिसने मेजर हो गया है यानी वयस्क हो गया है 18 साल 21 साल जो भी वयस्कता की उम्र अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट, जिस एक्ट के अंतर्गत या जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप फॉर्म करने जा रहे हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग आप मेजर हो गए हैं, वयस्क हो गए. एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, पागल आदमी संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है. ऐसा भी आपके आगे जब सेक्शन 12 पढ़ते हैं तो आप कोई व्यक्ति ऐसा है जो पागल कुछ समय के अंतरालों के लिए पागल रहता है, कुछ समय के बाद वो सही रहता है. तो जब वो सही था तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो पागल है उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है. मीन्स साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए, अपने डिसीजन खुद ले सकता हो. एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट. किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसको पर्टिकुलरली रोका ना गया हो, कहीं कहीं पे एज डिसाइड कर दी गई या कोई कंडीशंस लगा दी गए, कोई विशेष एरिया के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना है तो अदर एरिया के लोग बाग उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो इसके भी मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको 1 2 3 के रूप में लिखे हैं. एज ऑफ मेजॉरिटी वयस्क होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, माइंड से अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए संविदा करने में, और किसी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं करना. सपोज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप दिवालिया घोषित किए गए कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने की छूट नहीं दी गई, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस वाज द लेक्चर फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट and is the general principles and general introduction about law of contract. In next class we will briefly explain the contract. So have a nice day, good day.